Good morning, students. I hope everything is well and your days are going on very well. So, uh, in my previous video lecture, I made this chapter as per question answer. This is chapter number 6.1. A secret for two. Okay, so this is for communicative English, Holy Faith publication, and class for 7th. Okay, almost unit 5th till unit 5th. I have completed all chapters. If newly you are watching this video lecture, so please subscribe this channel and you can go to the playlist and you can see there is a playlist that is called Communicative English Class 7th. If you open that, so you can get all the previous chapter as well as question answer also and word meaning of some chapters. Yet I didn't make all poem, but after completing of this book, I will make all the poems also. So let's begin. In this chapter, we can see there is a man whose name is Percy, and there is a horse whose name is Joseph. How they made their relationship each other and how they were helpful to each other and what is their love and affection of each other, all the things we are going to discuss in this chapter. So okay then, so let's begin. So as usually I do, I read and translate. Okay, so if anyone is fully English medium, actually all are English medium, but some of are expecting Hindi translation. Okay, if you don't want to listen Hindi, so just when I read, so you can understand that. Okay then, let me start. As I told you, this is chapter number 6.1. If you have book, you can open page number 156. Page number 156. You may see your book at the same time. You can listen my translation. And further, I will make for videos only for English medium students. That will be little bit different. Okay. But for this year, till completing of all book, so I will make like this way. Then second part will be coming, that is for this book, that will be fully English. So तो शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। शुरू करने से पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई नए सिरे से इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मेरे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलें। उसको खोलने के बाद कम्युनिकेटिव इंग्लिश ये जो एक प्लेलिस्ट वहाँ पे ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप वहाँ से इसका जितने भी प्रीवियस वीडियो है, लगभग ये जो 5th यूनिट तक सारे चैप्टर का वीडियो क्वेश्चन आंसर बना करके वहाँ रखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Percy was a milkman. He worked for a milk company in the Montreal city of Canada. Okay, Percy ये एक मिल्कमैन था जिन्होंने एक मिल्क कंपनी में काम किया, और वो भी कहाँ पर है, कनाडा में, जो मॉन्ट्रियल नाम का जो सिटी है वहाँ पे वो काम करते थे। He was one of the many wagon drivers and that worked for the company. For 30 years, Percy had delivered milk
to the families living on Edward Street in Montreal. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे वागन्स जो ड्राइवर थे उनमें कंपनी में थे, उनमें से पेर्सी भी एक था, और जिन्होंने लगभग 30 इयर्स तक अपनी सेवा उस कंपनी में दे दिया। और इस 30 ईयर के दरमियान वो क्या करते थे, जो एडवर्ड स्ट्रीट है मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल जैसे एक शहर है जो कनाडा देश में है, और वहाँ पे वो मिल्क हमेशा पहुँचाया करते थे। जैसे आपके घर में भी कोई दूध वाला आता होगा, है ना, सो टू योर होम माइट बी some milkman coming. Okay, so according to that way, he was also going there and distributing milk. The horse which drove Percy's milk wagon was a large. Okay, Percy's का जो मिल्क वागन था वो बिल्कुल बहुत ही बड़ा था। वाइट हॉर्स उसके जो उसी के साथ उसको एक वाइट हॉर्स भी दी गई थी। इट वॉज नेम्ड जोसेफ एंड हैड बीन विथ पेर्सी फॉर द पास्ट 15 ईयर्स। तो यहाँ पेर्सी को जो वाइट हॉर्स दी गई, उस वाइट हॉर्स को उन्होंने जोसेफ नाम दिया है। ठीक है, क्या नाम दिया है? जोसेफ नाम दिया है। और वो जोसेफ लगभग 15 ईयर्स तक उनका साथ दिया, उनके साथ मिलकर के उन्होंने पूर्ण रूप से सेवा करी। तो पास्ट 15 ईयर्स व्हेन द बिग व्हाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द कंपनी ही डिडंट हैव ए नेम। जब पहली बार इस हॉर्स को कंपनी में लाया गया था और तभी उसे कोई भी नाम नहीं दिया गया, तो इसीलिए they told Percy that he could use the white horse for his wagon। और कंपनी वालों ने इसे कह दिया, किसको कह दिया? पेर्सी को कह दिया कि इस वाइट हॉर्स को वो अपने पर्पस में, अपनी पर्पस में मतलब कंपनी का जो मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके लिए वो इस्तेमाल करे। Percy stalked the horse neck and looked into his eyes। पेर्सी क्या किया? उस हॉर्स को थोड़ा स्ट्रोक किया। स्ट्रोक करने के बाद उसकी आंखों से आंखें मिला करके देखा। कैसे? उसके आंखों से आंखें मिला करके देखा। दिस इज ए नाइस हॉर्स ही सेड, आई विल नेम हिम जोसेफ। फिर उसके बाद उसने कहा कि यह हॉर्स जो है बहुत ही नाइस हॉर्स है, बहुत ही अच्छा हॉर्स है, और इसीलिए उसका नाम को वो क्या देने के लिए सोचा? जोसेफ देने के लिए सोचा। Within a year, Joseph knew the milk route as well as Percy did। एक साल के अंदर वो क्या करता है कि जो मिल्क रूट है, यानी ये कौन से स्ट्रीट में जा रहे थे? ये एडवर्ड स्ट्रीट में जा रहे थे, और एडवर्ड स्ट्रीट का जो रूट है वो सब कुछ भली भांति उसने क्या कर लिया? पहचान लिया, यानी उसको और किसी भी दिक्कत नहीं आई। सो ही रिकॉग्नाइज्ड वेरी क्लियरली all the route of Edward Street। There was no any confusion and there was no any doubt। Percy used to say that he didn't need rain to guide the horse। हॉर्स को गाइड करने के लिए एक रेन्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो पर्सी कहते हैं कि मैंने कभी भी इसको गाइड करने के लिए रेन्स का इस्तेमाल नहीं किया। आई नेवर टच देम, ही वुड से प्राउडली, मैंने कभी उसको छुआ तक नहीं। वो बड़ी प्राउडली मतलब बड़ी गर्व के साथ, है ना, वो कह रहे हैं। ईच मॉर्निंग ही अराइव्ड एट द कंपनी एट 5 o'clock। हर सुबह तकरीबन 5 बजे कंपनी में वो पहुंच जाते थे। द वागन वुड बी लोडेड विथ बॉटल्स ऑफ मिल्क एंड जोसेफ हिज टू इट। और वागन में मिल्क के सारे बोतल को क्या किया जाता था? रखा जाता था। तो तभी जोसेफ क्या करता था? उसको खींच लेता था। गो ऑन माई फ्रेंड, पर्सी वुड से सॉफ्टली टू जोसेफ। जोसेफ को बड़े प्यार से, है ना, बड़े प्यार से जोसेफ को वो कहते थे, मेरे दोस्त पर्सी चलो अब उठो।
Then the two would move proudly toward Edward Street. The horse would go rotting lightly, and Percy would call him in a loving name. तो यहाँ पे दोनों बड़े खुशी के साथ जाते हैं, और जैसे वो जा रहे होते हैं तभी लविंग बड़े प्यार से प्रेसी भी उससे बोला करते थे, है ना, और बड़े प्यार से उसका नाम लिया करते थे. The milk wagon without any direction from Pressy would arrive at Edward Street. तो कोई भी डायरेक्शन नहीं होता था और बड़े आराम से प्रेसी क्या कर जाता था, मतलब जोसेफ के द्वारा वो एडवर्ड स्ट्रीट में पहुंच जाता था. द हॉर्स वुड स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस. हॉर्स जो है पहले मकान पे वो स्टॉप कर लेता था, रुक जाता था. ही वुड अलाउ प्रेसी अबाउट ए मिनट टू गेट डाउन from his seat and hand over a bottle of milk at the front door. फिर उसके बाद 1 मिनट का समय होता था और उसी 1 मिनट का समय में वो क्या करता था, मिल्क कौन, प्रेसी मिल्क उठाता था. उठाने के बाद उसे लेकर के जिस मकान में पहुंचाना होता था उसका फ्रंट डोर पे वो रख करके आ जाता था. अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन. ही वुड स्किप 2 हाउस एंड स्टॉप एट द थर्ड. फिर उसके बाद वो इस तरह से 2 मकान छोड़ने के बाद और थर्ड मकान में जा कर के पहुँच करके फिर वो वहाँ पे स्टॉप हो जाता था, वहाँ पे रुक जाता था. दोस द टू वुड गो डाउन द लेंथ ऑफ स्ट्रीट. एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट जोसेफ वुड टर्न अराउंड एंड कम बैक अलोंग द अदर साइड. जैसे वो स्ट्रीट में एक के बाद एक मकान को ये लोग क्रॉस करके जाएंगे. क्रॉस करके जाने के बाद हॉर्स फिर से क्या कर देता था कि अदर साइड में, मतलब अदर लाइन में वो जाता था. ठीक है. ही वॉज रियली ए वेरी स्मार्ट हॉर्स. और वास्तव में वो बहुत ही स्मार्ट हॉर्स था. At the company, Percy would boast of Joseph's skill. अब जाहिर सी बात है ये, अगर कोई भी आपका घर में कोई सर्वेंट है, अच्छा काम करता है ना, तो आप दूसरे के सामने उसके बड़ाई करते हो, उसकी तारीफ करते हो. ठीक उसी प्रकार यह हॉर्स उसका कोई सर्वेंट नहीं था, वो उसका अपना परिवार का सदस्य, और इस प्रकार से वो अपना दोस्त ही मानता था. तो जब कभी भी कंपनी में कोई बात होती थी तो पर्सी बड़े खुश के साथ, बोस्ट मतलब बड़े घमंड के साथ वो कहता था, आई नेवर टच द रेन्स. ही वुड से, जोसेफ नोस जस्ट वेयर टू स्टॉप. इवन ए ब्लाइंड मैन कुड डू माई जॉब विथ जोसेफ पुलिंग द वैगन. वो कहता था, मैं कभी रेन्स को इस्तेमाल नहीं करता हूँ जो हॉर्स को गाइड करने के लिए किया जाता है ना. उसको पता है गली में जाना, कितने घर में रुकना, कहाँ कहाँ रुकना, सब कुछ उसको पता है. और यहाँ तक कि अगर कोई अंधा व्यक्ति भी बैठ जाए उसके मतलब वागन में और मिल्क पहुँचाना है तो भी प्रेसी वहाँ पे लेकर के क्या कर लेगा, पहुँचा देगा. सो आगे हम देखेंगे लगभग 5 साल तक वो अंधा हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जोसेफ के सहायता से वो मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करता रहा. इट इज सो इट वेंट ऑन 4 years. Percy and Joseph grow older together, but gradually, not suddenly. Percy's huge moustache were pure white now. तो इस प्रकार से 4 साल गुजर गया उनका. ठीक है, 4 साल नहीं, कई साल गुजर गया. और कई साल गुजरने के बाद प्रेसी भी ओल्ड हो गया और साथ ही साथ ये जो जोसेफ जो हॉर्स है वो भी ओल्ड हो गया. तो प्रेसी जो है उसका माउस्टाच जो है, मूछ जो है, धीरे धीरे पूरा वाइट हो गया, है ना. तो कहने का मतलब यह है कि बोथ ऑफ देम बिकेम ओल्डर. ये दोनों के दोनों अभी क्या हो गए, ओल्डर हो गए. एंड जोसेफ टू डिडंट लिफ्ट हिज नीज सो हाई व्हेन ही वेंट ऑन हिज राउंड एवरी मॉर्निंग.
तो जोसेफ भी बूढ़ा हो गया होने के कारण वो अपने नी को भी हाई उठा नहीं पा रहा है। जैसे कि हर सुबह उनको राउंड में मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाना होता है। जैक द फोरमैन ऑफ द कंपनी नेवर नोटिस दिस चेंज। तो जैक जो है वो तो एक फॉरमैन है कंपनी का, उन्होंने कभी कोई नोटिस नहीं किया था। He never noticed that both Percy and Joseph were getting older। मतलब उनका काम जो है बिल्कुल उसी हिसाब से चल रहा था जैसे पहले चल रहा था। तो वो कभी महसूस ही नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में दोनों अभी क्या हो रहे हैं, ओल्ड एज में आ रहे हैं। बट वन डे ही वॉज सरप्राइज टू सी पेसी विथ बिग वॉकिंग स्टिक। तो एक दिन ऐसा होता है कि पेसी के साथ मतलब हॉर्स का कुछ बातचीत होता है। ही हाई पेसी सेड द फोरमैन व्हाट डू आई सी देयर, मे बी यू हैव गॉट आउट। तो शायद आप मतलब इस समय में कोई डिजीज या फिर कोई पेनफुल आपका जॉइंट में हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है करके ये जो फॉरमैन है कंपनी का, उन्होंने किसको कहा, पेर्सी को कहा। आई डोंट नो व्हाट इट इज सेड पेर्सी। मुझे पता नहीं कि ये क्या चीज़ है। बट आज वन ग्रोस ओल्ड लेग्स गेट टाइड वेरी सून। लेकिन ये भी सत्य है, ये भी सत्य है कि जब कभी कोई व्यक्ति और बुजुर्ग होने में लग जाता है तो डेफिनेटली उसका जो टांग है, उसका जो लेग है, वो जवाब देना शुरू कर देता है। यू टू टीच द हॉर्स टू हैंड ओवर द मिल्क बॉटल टू योर कस्टमर। आप अपने हॉर्स को ये सिखाएं कि वही खुद जाए और आपके जो कस्टमर्स हैं उनको मिल्क हैंड ओवर कर ले। सो जैक सेड विथ स्माइल ही डज एवरीथिंग एल्स फॉर यू। उन्होंने बड़ी स्माइल के साथ कहा और उसके साथ साथ ये कहता है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे मैं रोकता हूँ, फिर कल मिलेंगे उसका सेकंड पार्ट में, पेज नंबर 150 से आगे जो भी उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।